Hello students, this is your chapter 6 Understanding Media and Advertising. This is your part 4. In this we will study about our Indian media. Later we have studied about this chapter in this chapter about right to information. Now today we will start our Indian media. So let's start and move to the topic. Indian media. Indian media initiated in the late 1700s while print media started in 1780. यानी हमारा इंडियन मीडिया जो है स्टार्ट हुआ था दैट वाज इन 1700 while जो हमारा प्रिंट मीडिया है वो स्टार्ट हुआ था हमारा 1780 में. इवन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इनिशिएटेड इन 1927 और जो हमारा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है वो हमारा 1927 में स्टार्ट हो गया था. एंड द स्क्रीनिंग ऑफ अगस्टा एंड लुइस लुमेरा मूविंग पिक्चर्स इन बॉम्बे इनिशिएटेड ड्यूरिंग 10 जुलाई ऑफ 1895. अब आप लोग सोच रहे होंगे हु इज़ अगस्टा एंड लुइस लुमेरा. तो बेटा अगस्ता एंड लुइस लुमेरा जो है वो एक तरह से एक साथ वर्क करते थे एंड दे वर द फर्स्ट हु स्टार्ट प्रोड्यूसिंग या उनको ने दिखाना शुरू किया दैट वाज अ मूविंग पिक्चर. इवन उन्होंने ही एक पहला कैमरा मतलब ईजाद किया था जिसके अंदर वो मूविंग पिक्चर्स वगैरह वो ले सकते थे. आई शो यू द पिक ऑफ दैट अगस्ता एंड लुइस लुमेरा. See, he is Augusta and Louis Limara, who started their moving pictures. I'll tell you about this. That was Augusta and Louis Limara invented a camera that could record, develop, and project films. The Lumera brothers, Augusta Mary Louis Nicholas Lumera and Louis Jean Lumera, were manufacturers of photography equipment, जो कि जिन्होंने फोटोग्राफी इक्विपमेंट को बनाया था. बेस्ट नोन फॉर देयर सिनेमाटोग्राफी, मोशन पिक्चर्स सिस्टम एंड द शॉर्ट फिल्म्स दे प्रोड्यूस बिटवीन 1895 एंड 1905 1905. यानी इस दौरान उन्होंने जो है सिनेमाटोग्राफी मोशन पिक्चर्स का जो सिस्टम है उन्होंने शुरू किया था. प्लस इन्होंने फोटोग्राफी इक्विपमेंट वगैरह का इस्तेमाल भी इन्होंने शुरू किया था. See, here you can see that Augusta and Louis Limera, he made the moving pictures in Bombay. Initiated during the July of 1895, is among the oldest and largest media of the world. Indian media, particularly the private media in India, has been free and independent throughout the most of its history. यानी हमारा इंडियन मीडिया है जो कि पर्टिकुलरली प्राइवेट मीडिया भी हमारे जो इंडिया के अंदर था दैट वाज फ्री एंड इंडिपेंडेंट थ्रू आउट मोस्ट ऑफ इट्स हिस्ट्री. जो कि फ्री एंड particularly the private media in India has been free and independent throughout most of the history. The period of emergency in India that was at the time of 1975 to 77 declared by the Prime Minister Indira Gandhi was the brief period when India's media was faced with government retributions. यानी उस टाइम पर जो है हमारे जो इंडिया है उन्होंने ये सारा देखा था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर कर दिया था एमरजेंसी. उस दौरान इसको जो हम प्रिंट मीडिया को जो है हमारे जो इंडियन मीडिया है उन्होंने हमारे जो गवर्नमेंट का रिट्रीब्यूशन है उसको फेस किया था. In India, over 99 million newspaper copies were consumed as of 2007, making it the second largest market in the world newspaper. अब हमारे इंडिया के अंदर है 99 million newspapers copies were consumed. Newspaper copies were consumed मतलब उनका यूज़ किया गया as of 2007, making it the second largest market. जबकि उस टाइम पे एक second largest market के रूप में जो हमारे न्यूज़पेपर का है वो सामने आया था. By 2008, India had a total of 60 crore internet users, comprising 6% of the country's population, and 4 crore people in India also have access to broadband internet, making it the 18th largest country in the world. In terms of broadband internet users, India also ranked 8th in the list of countries in number of television broadcasting stations with 1997 stations. यानी उस दौरान कि इतने सारे इंटरनेट यूज़र्स थे
कि जो कि हमारा जो इंडिया है वो उस टाइम पे रैंक 8th पे आया था, अगर उसको देखा जाए पूरे वर्ल्ड में के हिसाब से, इन नंबर ऑफ टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन विद 1997 स्टेशन। उस टाइम पे 1997 स्टेशंस थे। Now let's start the advertising. Advertising on social media sites is definitely effective. Social media is open and transparent to its audience, so it makes sense for brands to be there on social media sites. अब एडवर्टाइजिंग जो है हमारा मीडिया का साइट का बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके थ्रू लोगों को हम लोग अपना ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, जिसको कि जब हम लोग देखते हैं मीडिया उसको एडवर्टाइजमेंट को, देन हम लोगों के अंदर एक ऐसा आता है कि हम उस चीज़ को ख़रीदें या उसके लिए हमारे मन में वो चीज़ आ जाती है। तो ये हमारे जो एडवर्टाइजिंग है हमारे ऑडियंस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। सो इट मेक सेंस फॉर ब्रांड्स टू बी देयर, इसलिए एक सेंस बनाता है दैट कि वहाँ पे ब्रांड्स वगैरह जो होते हैं वो हमारे सोशल मीडिया साइट्स में मिलते हैं। द सोशल मीडिया हेल्प्स इन स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन एमंग द मासेस। हमारा जो सोशल मीडिया है वो पूरे मासेस में, मतलब हम आम जनता के ऊपर जो है कि एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। एडवर्टाइजिंग इज़ वन सच वे एंड द बेस्ट वे टू इन्फ्लुएंस पीपल पब्लिक ओपिनियन बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द मासेस अगेन एंड अगेन। तो बार बार जब हम किसी एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं तो इससे ये होता है कि हम पब्लिक के ओपिनियन का मतलब उनके माइंड में ये सेट कर देते हैं दैट दिस इज़ राइट एंड यू कैन परचेज दैट थिंग, और ये हमारे लिए अच्छा है। तो ये एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में असरदारक होता है। Whenever manufacturers and producers produce any goods, they want to sell it to grab attention of their customers. जब भी कोई मैन्युफैक्चरर्स हैं वो और या कोई चीज़ नई प्रोड्यूस करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके जो गुड्स हैं यानी जो उनका सामान है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ख़रीदें, जो कस्टमर्स हैं वो उनके पास बढ़ें। तो उसके लिए ये एडवर्टाइजमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। टेक हेल्प फॉर एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट्स विद इट्स क्वालिटी एंड यूजफुलनेस इन आवर डे टू डे लाइफ। तो आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट जो है हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। सी दिस इज़ द एडवर्टाइजमेंट ऑफ तंबाकू नियंत्रण कानून। अब आपको सामने जब आप देखते होंगे टीवीज़ पे, न्यूज़ पे, जब यही ऐड बार बार आपका सामने आता है तो आपको क्या लगता है कि दिस इज़ रॉन्ग, यानी कि हमें तंबाकू का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आपके दिमाग में भी आएगा, पेरेंट्स जो अगर कोई इस चीज़ का यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, कि उनके लिए कितना नुकसानदायक है, तो ये चीज़ उनके माइंड में आता है। सो इन सब चीज़ों का हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग इन एडवर्टाइजिंग। SMM इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट और ऑनलाइन मार्केटिंग, यानी कि हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो हमारा बहुत ही बड़ा है एडवर्टाइजिंग में। SMM is a form of internet or online marketing. It aims to achieve its branding and marketing goals through various social media networks, social web applications, and through various other sources like 3D worlds like Second Life, Active Worlds, etc. यानी कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर देखेंगे तो इनका इनका जो एक मेन सेट होता है वो दैट इज़ कि उनको अपने गोल्स को अचीव करना है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने चीज़ को यानी उसके बारे में पहुंचाना है, उसके बारे में बताना है। would 3D worlds like Second Life, Active Worlds, etc. With the introduction of social media, consumers started opposing the passive way. तो इससे क्या है कि जब हमने सोशल मीडिया को कंज्यूमर का हमने जब स्टार्ट किया तो सोशल मीडिया को लोगों ने अपोज करना भी स्टार्ट कर दिया। Of receiving communication from markets, they have now become effective contributors contributing to brand messaging, यानी इसके थ्रू आपके सामने ब्रांड्स वगैरह शो होते हैं। आप उसके बाद ये बहुत ही इफेक्टिव मतलब जो कंट्रीब्यूटर्स हैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। वो अपना ब्रांड मैसेजिंग वगैरह पास करके लोगों के माइंड में ये सेट कर देते हैं दैट दे हैव टू परचेज दिस थिंग and it is good for them. Apart from consumers' point of view, every company has different products with unique features to offer their consumers. यानी कि अगर इसके हिसाब से अगर अलग से और देखा जाए कि कंज्यूमर्स
के पास देने के लिए हर कंपनी के पास अलग अलग यूनिक फीचर्स होते हैं जो कि वो कंज्यूमर को प्रोवाइड कराते हैं. देयर मार्केटिंग कैंपेन्स डिफर. उनके मार्केटिंग कैंपेन्स यानी मार्केटिंग करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है. एसएमएम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस, increasing visibility, increasing feedback, online reputation management, as well as in selling a product or service. तो इससे क्या है कि जो मार्केटिंग के थ्रू लोगों के अंदर एनकरेज मतलब उनको और ज़्यादा उत्साहित किया जाता है. विजिबिलिटी उनको उस चीज़ को बार बार देखने के बाद उस चीज़ का प्रोडक्ट उनके दिमाग में सेट हो जाता है. सो दैट दे एक रेपुटेशन ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, यानी उस प्रोडक्ट को सर्विस को सेल करने के लिए ये माइंड में उनके सेट कर दिया जाता है. So this was the section we have completed here, part 5. See you in the next section. So bye bye, take care.